ان کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محبت کا معیار ہمیں سکھا دیا، بتا دیا۔ فرمایا لوگو اگر تمہارے باپ دادا کی محبت، آباؤکم و ابناؤکم، پھر اولاد کی محبت، پھر فرمایا ازواجکم، گھر والوں کی محبت، وعشیرتکم، خاندان کی محبت، یہ وہ محبتیں ہیں جو جائز محبتیں ہیں، ان کا حکم دیا گیا ہے۔ محبتیں یہ جائز ناجائز محبتوں کا ذکر نہیں فرمایا، جائز محبتیں۔ باپ سے محبت جائز ہے، اس کا حکم ہے۔ آبا سے محبت حکم ہے، اولاد سے محبت یہ ضروری ہے، بیوی سے محبت ضروری ہے، عشیرتکم، خاندان سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، صلہ رحمی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اپنی جگہ پر اس کے احکام موجود ہیں، یہاں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ محبتیں جائز محبتیں، یہی محبتیں ہو سکتی ہیں انسانوں کے ساتھ، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ ازدواج ہے، رشتہ مسہرت ہے، خونی رشتہ ہے، صلہ رحمی خاندانی رشتہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ مال جن کا تمہیں کھٹکا رہتا ہے، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ آ جائے، مندی کی وجہ سے جو ہے میرا مال و متاع کہیں لٹ نہ جائے، تمہیں خوف رہتا ہے۔ وہ تجارت میں لگا ہوا مال، وہ بینک بیلنس، وہ بینک میں پڑا ہوا، گھر میں پڑا ہوا، وہ سارے مال، فرمایا ان کی محبت۔ پھر اگلی محبت ارشاد فرمائی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ کوٹھیوں کی محبت جن میں تم رہتے ہو، وہ محل، وہ تمہارے گھر جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ ساری محبتیں یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے اور حضور کی محبت سے، اور پھر وجہاد فی سبیلہ، جہاد اللہ کی راہ میں، وہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ دین کی محبت، کیا تین محبتیں بتائیں۔ فرمایا ایک طرف یہ ساری محبتیں ہیں، آباء و اجداد کی محبت، گھر کی محبت، مال کی محبت جو ہے، اور اسی طرح خاندان کی محبت، تجارت کی محبت، یہ ایک طرف ہے، رکھ دیا، ایک پلڑے میں رکھ دیا اللہ پاک نے محبتوں کو، ایک پلڑے میں رکھ کر فرمایا اس کے بعد دوسرے پلڑے میں فرمایا اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اور اللہ کے دین کی محبت۔ اگر لوگوں یہ محبتیں ان تین محبتوں سے، کون سی محبت؟ اللہ کی، اس کے رسول کی، اور دین کی محبت، اگر ان محبتوں سے تمہاری یہ گھر مال دولت کی محبت بڑھ جائے تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ پھر تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہے، پھر تم ایمان والے نہ رہے، بلکہ فرمایا صرف یہ نہیں کہ ایمان برباد ہو گیا، فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ دوستان محترم، پتہ چلا کہ یہ ساری محبتیں، اللہ کی محبت، حضور کی محبت
और हुजूर जिस दीन को लाए हैं उसकी मोहब्बत से अगर नीचे रहें तो ये मोहब्बतें दुरुस्त हैं। अगर ये मोहब्बतें अल्लाह रसूल और दीन की मोहब्बत पर गालिब आ जाएं तो फिर समझो ना ईमान है ना अल्लाह की रहमत शामिल हार रहेगी, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया फिर इस अजाब का इंतजार करो। जरा गौर करना, एक बात यहाँ और समझने वाली है। बाद लोग अल्लाह रसूल की मोहब्बत में फर्क करते हैं। क्या? अल्लाह रसूल अल्लाह वालों की मोहब्बत में फर्क करते हैं। अल्लाह पाक ने फर्क नहीं फरमाया। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत ये एक ही मोहब्बत है, एक ही पल्ले में रखी। फरमाया ये मोहब्बत अलहदा मोहब्बतें नहीं है। अल्लाह के दीन के साथ जो मोहब्बत कर रहा है, दीन जहां से मिलता है, दीन कहां से मिलता है? हुजूर से मिलता है। दीन मदरसे से मिलता है, दीन खानकाह से मिलता है, दीन मुर्शिद से मिलता है, दीन आलम से मिलता है, दीन अल्लाह वाले से मिलता है। फरमाया अगर ये मोहब्बतें, अगर खानदान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, इन मोहब्बतों से हेच हो जाएं तो समझो ना तुम्हारा ईमान बाकी है बल्कि अल्लाह के अजाब का इंतजार। आओ ये पैमाना रख के हम अपने ईमान का खुद जायजा लेते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैंने परख दे दी, परख भी अपनी तरफ से नहीं दी। अल्लाह का फरमान तुम्हारे सामने रखा है। अल्लाह फरमाता है ले लो, अपने ईमान का जायजा ले लो। आज एक तरफ ये सारी मोहब्बतें रख दो और दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत रख दो, हुजूर की मोहब्बत रख दो, अल्लाह के दीन और अल्लाह वालों की मोहब्बत रख दो। अगर ये मोहब्बतें उस मोहब्बत के मुकाबले में हेच हैं तो समझो ईमान की खबर लो, ईमान बाकी नहीं है। दोस्तान मोहतरम, तो सबसे बड़ा अमल वो मोहब्बत इलाही। क्या? अंदर दिल के अंदर दो आलम से करती है बिगाना दिल को। क्या? दो आलम से करती है बिगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिनका दिल उससे लग जाता है तो फिर ये सारी मोहब्बतें हेज हो जाती, ये सारी मोहब्बतें हेज हो जाती हैं। मुझे याद आ रहा है हुजूर किबला खास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे जिन्हें मोहब्बत की कदर होती है और अल्लाह की मोहब्बत की जो तालिब है, फरमाया मैं हुजूर मारी वाले सरकार की बारगाह में पहुंचा। आपने पूछा बेटा कैसे आना? मैं उर्दू में बता रहा हूं, आप तो उसी जबान में सुनाया करते थे। बेटा कैसे आना हुआ? मैंने जो है अर्ज किया हुजूर तालिबे मौला। क्या? तालिबे मौला। आप चौंक उठे और मैं बेटा सुबह से शाम तक बैठे हैं। कोई आता है बीवी रुस गई है, कोई आता है चोरी हो गई है, कोई आता है तवीज दे दें, कोई आता है औलाद नहीं हुई, कोई आता है कारोबार मंदा है। हम तो सुबह से बैठे हैं, देने को कोई लेने वाला ही नहीं। आपने फरमाया कि हम तो माइल बकरम हैं। क्या? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही। हजरत शेख अहमद बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। वो फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की बातें हैं। वो फरमाते हैं मुझे एक रात अल्लाह पाक ने अपने जमाल का दीदार करवाया। ख्वाब, क्या? ख्वाब में अल्लाह पाक ने अपने जमाल का दीदार करवाया और मुझे इरशाद फरमाया तुम लोग जो है, तुम लोग से मुराद तुम सारे मेरे दोस्तों की बात हो रही है। फरमाया तुम लोग जो है मुझसे जब मांगते हो, कोई घर मांगता है, कोई अपनी हाजत मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मेरा बायजीद ऐसा है, बायजीद बुस्तामी, अल्लाह पाक ने तारीफ फरमाई। फरमाया मेरा बायजीद ऐसा है, वो जब भी मुझसे मांगता है मुझको मांगता है। वो जब भी मुझसे मांगता है दुनिया नहीं मांगता, दुनिया की कोई सबब नहीं मांगता, माल नहीं मांगता,
दौलत नहीं मांगता, दुनिया की गर्ज नहीं मांगता, वो मांगता है तो मुझसे मुझको मांगता है। आइए, मुझे याद आ रहा है हुजूर किबला खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। असल उर्स तो यही होता है कि शेख की बातें हों, शेख की तालीमात को दोहराया जाए, यही उर्स होता है। अगर कोई और समझता है तो समझता रहे, उर्स ये होता है। आप फरमाया करते थे कि बादशाह ने एक दफा जो है वो एक मेला लगाया। अगले जमाने के बादशाह जो है मेला लगाया करते थे। एक मेला लगाया उसने, मेले में तरह तरह की चीजें रखी, सजा के रख दी और ऐलान फरमाया जो आए, जिसकी जो मर्जी आए ले जाए, जो आए और जिसकी जो मर्जी आए आकर ले जाए। मेला सज गया, आने वाले आ रहे हैं और आप वो खुद जो है खुद भी उसने उसी मेले में अपना तख्त सजाया और वो बादशाह भी उसी तख्त पर बैठ गया। उस तख्त पर वो बादशाह भी बैठ गया। अब वो तख्त सज गया है, तख्त पर बादशाह भी तशरीफ फरमा है और दुनिया भर के माल और असबाब, खूबसूरत चीजें जो मुयस्सर थी उसकी जो है बादशाही में, वो सारी सजी पड़ी है। और हुक्म है जिसको जो पसंद आए एक उठा कर ले जाए। आए लोग आए, किसी ने हाथी पसंद किया, किसी ने घोड़ा पसंद किया, किसी ने जेवर पसंद किया, किसी ने सोना पसंद किया, किसी ने चांदी पसंद की। दुनिया की मिसाल है लेकिन समझने वाली है। गालिबन ये जो है हिकायात रूमी में है। गालिबन मैंने किबला खाई से सुना और दसियों बार सुना है। आप फरमाते थे कि लगा हुआ है माल असबाब, जिसकी जो मर्जी आए उठा कर ले जाए। एक बांदी थी, गुलाम बांदी थी, वो आई और उसने जब देखा वो गुजरी, उसने जाकर बादशाह पे हाथ, किसने? बादशाह पे जाकर हाथ रखा। वो जो नौ रतन थे उठ खड़े हुए, वो भोली है, कमली है। असल ऐलान तो ये है कि जो मर्जी आए उठा के ले जाए, तो माल उठा। उसने कहा ऐलान ये है जो इसमें मौजूद है वो ले जा, मुझे इसकी गर्ज नहीं है, मुझे इसकी गर्ज है। तो बादशाह ने कहा ये समझ गई है, काजी बुलाओ, निकाह करो। ये इसने जो इंतखाब किया है ये सब लेने वालों से आला इंतखाब। तो दोस्ताने मोहतरम, अब जब वो बादशाह की मलका बन गई तो वो सारा माल और असबाब जो है वो उसका हो गया और सबकी मालिक हो गई। तो दोस्तों, अगर दोस्ती रखनी है तो मालिकों के मालिक से रखो। जैसे मालिकों के मालिक से जब होगी तो फिर मालिक की सारी खुदाई तुम्हारी होगी। यही बात है जो अल्लाह वालों को समझ आ जाती है। जब उससे लौ लग जाती है, उससे यारी हो जाती है, फिर किसी और से यारी की जरूरत नहीं रहती। फिर उसका सारा माल और मता उसके दोस्तों का होता है। तो दोस्ताने मोहतरम, ये मोहब्बत इलाही के बाब में मैं अर्ज कर रहा हूँ। चंद अहादीस मुबारका बात समझाने के लिए हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान एक हदीस मुबारका है, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपके जो है ईमान में बरकतों की बहार आएगी। ईमान के अंदर क्या बरकतों की बहार आएगी। और आज की जो हाजिरी है इसका मकसूद, ये हासिल मकसूद है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में यह हदीस है, फरमाया ला युहिक्कुल अब्दु हकीकतल ईमान। कोई शख्स, किसी शख्स के अंदर ईमान की हकीकत उस वक्त तक जागुज़ी नहीं हो सकती, मुतहक्किक नहीं हो सकती, मुतमक्किन नहीं हो सकती। ईमान की हकीकत ईमान को कोई शख्स उस वक्त तक नहीं पा सकता, तब तक हुजूर फरमाया हत्ता यग़ज़ब लिल्लाह व यरदा लिल्लाह, जब तक उसकी किसी के साथ अदावत और गजब भी अल्लाह के लिए ना हो जाए
اور اس کی محبت بھی اللہ کے لیے. اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو کوئی شخص نہیں پا سکتا. یہ حقیقت ایمان ہے. دوسرے لفظوں پر معیار ایمان ہے. ہم نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے کہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ کیا اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. ہماری نفرتیں کیا اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. ہماری نفرتیں تو ہماری ذات کی خاطر. ہماری محبتیں ہماری نفسانی خواہشات کے تابع ہیں. اور مقصود کیا ہے کہ ہماری محبتیں بھی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائیں اور ہماری عداوتیں بھی اللہ کے لیے ہو جائیں. تو ارشاد فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ. فرمایا کہ میرے محبوب بندے جو ایمان کی حقیقت کو پا لیتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی حقیقت جو ہے جان گزی ہو جاتی ہے، فرمایا وہ میرے محبوب احبائی وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں. مولا تو کن سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا وہ اولیائی وہی تو ہیں جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے اولیاء ہیں. تو مولا پھر ان کی نشانی کیا ہے؟ کیا ان کی علامت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون بذکری، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہیں کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے، ذکر میرا ہو رہا ہوتا ہے، یاد ان کی آ جاتی ہے. جب میرا ذکر ہوتا ہے وہ یاد آ جاتے ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے میں یاد آ جاتا ہوں. ان کا ذکر میرا ذکر وہ اس طرح باہم مل گیا ہے. ہمارا ذکر جدا نہیں ہے، ذکر میرا ہوتا ہے، صورت ان کی سامنے ہوتی ہے اور صورت ان کی سامنے ہوتی ہے، ذکر میرا. اللہ رب العزت یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو حضور بیان کریں اور اللہ کا فرمان. اور حدیث مبارکہ ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باخیارکم. لوگو صحابہ کرام تمہیں بتا نہ دوں کہ تم میں پھر بہتر کون ہے. سارے صحابہ بہتر تھے، سارے حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے. تو کیا ارشاد فرمایا تم میں بہتر کون ہے؟ اخیار، خیر والے کون ہیں؟ اخیار کون ہیں؟ دوسری حدیث میں ہے الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ ایو جلسائنا خیر. صحابہ نے پوچھا حضور ہم کن کے ہم نشین ہیں جو بہترین لوگ ہوں، کن کی مجلسوں میں بیٹھے، کن کی صحبتیں اختیار کریں. حضور نے 3 باتیں ارشاد. کیا؟ اپنی مجلسوں کو، اپنی ہم نشینیوں کو حضور کے فرامین کی روشنی میں لے آؤ. حضور کے فرامین کی روشنی میں اپنی ہم نشینی کو لے آؤ. حضور غوث پاک کا مہینہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ گرو کی صحبت اختیار کرتا ہے، آپ کے مواعظ میں ہے، فیوز ربانی الفتح الربانی میں آپ کا خطبہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو شریروں کے ساتھ گرو کی صحبت اختیار کرتا ہے، گرو کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. گرو کی صحبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھوں سے، اخیار سے، خیر والوں سے بدگمان ہو جاتا ہے. اور یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو جن کو دیکھنے سے رب یاد آئے. اذا رؤوا ذکر اللہ. ان کو دیکھو چہرہ ان کا ہو، یاد خدا. ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اور دوسری حدیث میں ہے من ذکرکم اللہ برؤیتہ، کہ ان کی رؤیت تمہیں رب یاد کرے. ان کو دیکھو تو رب یاد آ جائے. اور فرمایا پھر ان کی مجلس میں بیٹھو تو کیا ہو؟ آخرت یاد. وہ درس کس چیز کا دیں؟ آخرت کا درس. وہ پیر نہیں ہو سکتا جو دنیا کا درس.
वो पीर नहीं हो सकता जिसकी मजलिस में दुनिया की बात हो। मजलिस तो वो मजलिस, फरमाया उनकी सोहबत में क्या मिले, तुम्हें फिक्र आखिरत मिले, आखिरत की फिक्र मिले, आखिरत मिले। और तीसरी चीज फरमाई कि वो कलाम करें तो उनके कलाम से तुम्हें हिकमत मिले, दीन का इल्म मिले, दीन का फहम मिले। उनके कलाम से दीन मिले, उनकी सोहबत से आखिरत मिले और उनके दीदार से रब मिले। फरमाया उनकी मजलिस में बैठा। आइए हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और फरमान आलिशान हुजूर का, उसमें आप उस फरमान को आपने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ने सुना होगा, लेकिन गौर नहीं किया। आज मैं थोड़ा उस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह ने दाऊदी बेमिसाल आवाज अल्लाह पाक ने अता की। दाऊद अल्लाह के वो पैगंबर, अल्लाह पाक से हुजूर फरमा रहे, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह से दुआ फरमाया करते। क्या दुआ करते थे? ये दुआ फिर जो है हुजूर किबला ख्वाहिश से अक्सर ये दुआ अपना करते। मैं तो चुन चुन के वो चीजें लाता हूँ जो मेरे शेख की तालीमात, मैं बस वही लाता हूँ। तो क्या हजरत दाऊद ने क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, आए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ऐ अल्लाह तुझसे तुझको मांगता हूँ। क्या? सूफियाना आशिकाना तर्जमा क्या है? मालिक तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ। अगली बात क्या है? फरमाया वह हुब्बा मैं युहिब्बो का, और मौला तुझसे तेरे महबूब मांगता हूँ। क्या? तुझसे तेरे महबूब मांगता हूँ, तुझसे तेरे महबूबों की मोहब्बत मांगता हूँ। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह पाक के रसूल ने दुआ मांगी, हुजूर इसी दुआ को बयान फरमा रहे हैं। तो नेकों की मोहब्बत कितना बड़ा अमल है कि हजरत दाऊद मांगते हैं तालीम उम्मत के, हुजूर मांगते हैं तालीम उम्मत के लिए कि मौला पहले तो अपना आप अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मोहब्बत के जलवों में गुम फरमा दे, और फिर जो तेरे महबूब हैं उनकी मोहब्बत अता फरमा। ये सारा अमल ये अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत का हुसूल है। उससे मिलता क्या? उससे क्या मिलता है? अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह वालों की मोहब्बत मिलती है। और ये वो अमल है कि हुजूर की सुन्नत है। हुजूर मांग रहे हैं और बयान फरमा रहे हैं, हजरत दाऊद अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा करते। हुजूर और क्या मांगा? तीसरे मकाम, तीसरे जगह पर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वह हुब्बल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी इला हुब्बि। हदीस में अल्फाज मुख्तलिफ हैं, कहीं युकर्रिबुनी है, कहीं अल अमल के अल्फाज हैं, मुख्तलिफ रिवायात में अल्फाज मुख्तलिफ आते हैं। तो तीसरी जगह पर क्या? अमल की मोहब्बत। अच्छा, अमल का भी किबला क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। अमल का किबला अल्लाह की मोहब्बत। वो अमल अता फरमा मौला जो तुझे पसंद, वो काम अता फरमा जो तुझे पसंद हो, काम भी वो दे जो तुझे पसंद हो, दुनिया में महबूब भी वो बना जो तुझे पसंद हो, और अपनी मोहब्बत का। फिर आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे क्या फरमाया करते थे? आगे फरमाते थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। फरमाया करते थे, आए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत मेरे दिल में, मेरे अहल से, मेरे घर वालों से भी ज्यादा, मेरी जान से भी अपनी मोहब्बत को ज्यादा फरमा दे। और शदीद प्यासा हो, और शदीद प्यासे को जिस तरह ठंडे पानी की ख्वाहिश होती है, फरमाया उस ठंडे पानी शरबत की लज्जत से भी मुझे अपनी मोहब्बत ज्यादा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
अल्लाह की मोहब्बत मांग रहे हैं। और हुजूर ने भी मांगी, क्या? हुजूर का भी फरमान है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक। आए अल्लाह, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, वही मौजूद है किताब दावात में। क्या इरशाद फरमाया? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक। आए मालिक, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। क्या? अपनी मोहब्बत दे दे। व हुब्ब मन यनफ़अनी हुब्बुहु इंदक। हाँ, और हर उस बंदे की मुझे मोहब्बत दे दे जो तेरी बारगाह में मुझे नफा दे, जो तेरे यहाँ काम आए, वो मोहब्बत। अब देख लें कौन सी मोहब्बतें उसके यहाँ काम आए। पैमाना दे रहा हूं, परख कौन सी मोहब्बत। बस जो मोहब्बत उसके यहाँ काम आए, हम उस मोहब्बत को अपनाते जाएं, उस मोहब्बत को बाकी मोहब्बतों पे तरजीह देते जाएं। बाकी मोहब्बतें भी जायज हो सकती हैं, पर जिंदगी में गालिब और तरजीह उस मोहब्बत को होनी चाहिए जो मोहब्बत अल्लाह के यहाँ नफा देने। अब एक सवाल पैदा होता है, आपके यहाँ भी हो रहा होगा कि हम ये मोहब्बत करें, पिंडी से ये चले, इस्लामाबाद से आए, वो खूबसूरत चेहरे वाला हमारा बच्चा, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। कुछ ऐसे भी हैं कि हफ्तों से लगे हुए हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई रातों को जाग के काम कर रहा है। तो भाई ये किस लिए, क्या इस मोहब्बत में रखा क्या है? मोहब्बत लगाए बैठे हैं भाई, इस मोहब्बत में है क्या? पहली बात तो यह है, ये मोहब्बत ऐन ईमान है। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं है। आइए दूसरी बात, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये हदीस मुबारका काफी सारे रावियों ने इसे रिवायत किया है, मुतअद्दिद अहादीस की किताबों में मौजूद है। समझने की बात है, हजरत इब्न मसूद ने रिवायत किया, बाकी बहुत सारे सहाबा कराम ने रिवायत फरमाया है। वो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज किया, हुजूर एक बंदा है, वो एक कौम से, कुछ अफराद से, कुछ नेकों से मोहब्बत करता है, पर उसके अमल उन जैसे नहीं है। क्या? उसकी मोहब्बत में फर्क नहीं है, मोहब्बत कामिल है, अमल उन जैसे नहीं है, अमल उन जैसे नहीं कर सका, मोहब्बत में कामिल है। हुजूर से अर्ज किया, हुजूर मोहब्बत करता है, अहब्बु कौमन वलम यलहिक बिहिम, लेकिन वो जो है अमल में उनको नहीं पहुंच सकता, मोहब्बत उनसे करता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ओ मियां क्या पूछते हो, अल मर्उ माअ मन अहब्बा, बंदा जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसी के साथ उसको रखे। अल मर्उ मन अहब्बा। दूसरी हदीस है, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हुजूर से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हुजूर ने यही जवाब दिया, अल मर्उ मन अहब्बा, कि अबू ज़र जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसका उसी के साथ हशर फरमाएगा, उसी के साथ हशर फरमाएगा। तो हजरत अबू ज़र की चीख निकली, रिवायात में है, और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत फरमाता हूँ। हुजूर ने हाथ पकड़ा, फरमाया, अल मर्उ माअ मन अहबब्ता, ऐ अबू ज़र तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तू अगर हुजूर से मोहब्बत करता है तो फिर तेरा हशर हुजूर के साथ। ये मोहब्बत का अजर है। मेरे किबला खायसा फरमाया करते थे, मोहब्बत बंदे को वहां पहुंचा देती है जहां अमल नहीं। क्या? मोहब्बत बंदे को वहां पहुंचा देती है जहां अमल की तो बात हो रही है। कह दिया सहाबी ने, हुजूर अमल में उन जैसा नहीं हो सकता। अबू ज़र कह रहे हैं, हुजूर सहाबी हूं, मजलिस में बैठता हूं, हुजूर आप जैसा नहीं हो सकता, आपको नहीं पहुंच सकता, भी नहीं सकता। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आए अबू ज़र, अल मर्उ माअ मन अहबब्ता, अगर तू मोहब्बत में सच्चा है तो तू जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ। दोस्तान मोहतरम, ये क्या है? मोहब्बत का समर है। तो दोस्तान मोहतरम, आइए हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर
محبت الہی اگر نہ ہو، نہیں، کسی نے پوچھا کہ حضور کمینہ کسے کہتے ہیں، کمینے کی تعریف، کسی نے پوچھا کہ حضور کمینہ کسے کہتے ہیں، کمینے کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جسے مولا تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہ ہو، جسے مولا تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہ ہو، اور پھر وہ اس راستے کا طالب بھی نہ ہو، کسی سے پوچھنے والا بھی نہ بنے، کسی سے راستہ معلوم بھی نہ کرے، دو باتیں فرمایا، مولا تک پہنچنے کا راستہ بھی نہ ہو اور پھر راستے کی تڑپ اور طلب بھی نہ ہو، فرمایا وہ کمینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مولا تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا، پہلے میں محبت الہی کی تعریف، پھر محبت الہی کی پرکھ، معیار ایمان، احادیث مبارکہ کی روشنی۔ اب محبت الہی حاصل کیسے ہو؟ چند چیزیں بزرگان دین نے جو لکھی ہیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نچوڑ میں ہر بات پہ حدیث اور قرآن اس میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن صرف وقت کی کمی کے پیش نظر آپ کے سامنے وہ چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے محبت الہی پیدا ہو۔ سب سے پہلی بات کہ محبت الہی حضور کے اسوہ، پہلی بات کیا؟ حضور کے اسوہ میں جو شخص جسے یہ فکر ہو کہ میرے شب و روز حضور کے اسوہ میں گزرے، حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور کیسے اٹھتے تھے، حضور کیسے کلام فرماتے تھے، حضور کس طرح مسکراتے تھے، حضور کس طرح حسن سلوک فرماتے تھے، حضور کس طرح نماز ادا کرتے تھے، حضور کس طرح اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل ان کنتم، دعوے دار ہو، محبت الہی کے طالب ہو، محبت چاہتے ہو، محبت کی طرف رکھتے ہو، تو آؤ در مصطفیٰ پر آ جاؤ، حضور کی اسوہ کو اپنا لو، حضور کی اتباع اور فرمانبرداری میں لگ جاؤ، تمہارے شب و روز حضور کے شب و روز میں رنگے جائیں۔ جب حضور کی حیات میں تمہاری حیات رنگی جائے گی تو مولا کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو پہلا کام، کبھی بھی محبت الہی حضور کے اسوہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولایت تو دور کی بات، ولایت کا پہلا قدم محبت الہی ہے، تو محبت الہی ملتی ہے حضور کے اسوہ۔ تو دوستان محترم، ہماری جو ہے حضور قبلہ خاصہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، پہلا سبق کی محبت الہی، اور محبت الہی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ حضور کے اسوہ۔ تو شب و روز حضور کے اسوہ میں ڈھالنے کی کوشش کرو، حضور کے دن راتیں کہ حضور کیسے گزارا کرتے تھے، پھر معیار کہ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی کام کرو، تو معیار یہ ہونا چاہیے اس سے حضور راضی ہوں گے یا حضور ناراض، حضور کو خوشی ہوگی یا حضور کو رنج پہنچے گا۔ جب ہماری زندگی میں عمل کا معیار حضور کی ذات بن جائے گا، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے فاکثر ذکر، وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ محب کثرت سے کس کا ذکر کرتا ہے؟ محبوب کا کرتا ہے۔ طالب مولا بننے چاہتے ہو، محبت الہی کے دعوے دار ہو، محب مولا بننے چاہتے ہو، تو آؤ پھر ذکر کو اپنا۔ ذکر دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر ہے تو ذکر ذکر آپ فرمایا کرتے تھے حضور قبلہ خاص صاحب، مجھے اشعار بھول جاتے ہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ گر تو خواہی زیستن بآبرو، گر تو خواہی زیستن بآبرو، ذکر او کن ذکر او۔ اگر تو بآبرو عزت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر دنیا میں بآبرو زندگی گزارنا چاہتا ہے، پھر اس کا ذکر کر، اس کا ذکر کر، اس کا ذکر کر۔
हाँ, आगे शेर में है कि हर गदारा जिक्र सुल्तान कुनद, हर फकीर जब उसका जिक्र करता है जो सुल्तानों का सुल्तान है, हाँ जी, जो उसकी याद में माँ हो जाता है, जो उसकी याद में शब रोज गुजारता है, तो वो भी सुल्तान हो जाता है। हर गदारा जिक्र सुल्तान कुनद, हर गदा को, हर फकीर को उसका जिक्र सुल्तान बना देता है। और दोस्तों, जिसने भी सुल्तान बनना है वो अल्लाह का जिक्र करे। अल्लाह का जिक्र वो वजीफा है, ये कायनात में भी सुल्तान बना देता है और आखिरत में भी सुल्तान बना देता है। जी, फिर फरमाया जिक्र बस जेवरे ईमान बबत। अल्लाह का जिक्र क्या है? ईमान की आरائش है, ईमान की ज़बैश है, ईमान का जेवर है। ईमान सजता रब के जिक्र से है। हाँ जी, बंदा वैसे बंदा होता है ना, फिर जब अच्छा लिबास पहन ले, ऊपर वेस्ट कोट पहन ले, सर पे दस्तार रख ले, तो फिर सज जाता है। ये इंसान के, ये मर्द के जेवर है, औरत का जेवर मुख्तलिफ है। हाँ जी, कपड़े भी हैं और जेवर की भी उसे इजाजत है सोने की। हाँ जी, तो ये क्या है? इससे सजता है इंसान। तो फरमाया ईमान किससे सजता है? बोल दें, अल्लाह के जिक्र से। ईमान किससे सजता है? अल्लाह के जिक्र से। जिक्र से सजता है। अगर ईमान को सजाना है तो आओ अल्लाह के जिक्र से ईमान को सजाओ। और हमारे सिलसिले में है, मेरी जिम्मेदारी है, उसका मकसद यही है। मैंने ये तालीम आपके सामने रखी है। हाँ, 12 तस्बीहां हमारे सिलसिले में है। 12 तस्बीहां मगरिब से लेकर इशा तक, या फिर जो है सुबह नमाज से पहले, तहज्जुद के बाद 12 तस्बीहां। 3 तस्बीहां नफी इस बात की, 3 तस्बीहां इस बात और कल्बी की, 3 तस्बीहां जिक्र रूही की, और 3 तस्बीहां जिक्र सिर्री की, और फिर जिक्र रिसालत माब 11-14 मरतबा उसका भी विर्द करना है। ये तालीम है। आइए इसके बाद फिर आगे तीसरी चीज, मोहब्बत इलाही कैसे पैदा होती है? वो कुरान की तिलावत से पैदा होती है। जैसे कुरान की तिलावत से, कुरान से मोहब्बत हो, कुरान की तिलावत हो, मोहब्बत से कुरान को उठाएं और ऐसे खोलें कि ये मेरे मालिक का, मेरे महबूब का जो है संदेशा है, ये पैगाम आया है, उसका पैगाम मेरे नाम आया है, ये प्यामा है, मेरे नाम आया है। अगर इस तरह करके उसकी कसरत से तिलावत करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। तीसरा अमल क्या है? अल्लाह की मोहब्बत के पैदा करने का कसरत से तिलावत कलाम मजीद है। ये कलाम मजीद की कसरत से तिलावत करें। ये सूफिया ने जो नुस्खे दिए हैं मोहब्बत इलाही पैदा करने के, वहां से चुनकर आपके सामने है। तो आगे वो फरमाते हैं कि ये हुजूर का फरमान है, पूरा फरमान। मैं फरमान भी अर्ज कर देता हूँ कि बंदा जो है, चौथा मोहब्बत इलाही का ये है कि बंदा हर वक्त अल्लाह से मोहब्बत का तालिब रहे, अल्लाह से मुलाकात का तालिब रहे। क्या? अल्लाह से मुलाकात का तालिब रहे। उसका लम्हा लम्हा इसमें गुजरे कि मौला की मुलाकात में तड़पता रहे, उसके अंदर तड़प हो मौला की मुलाकात। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मुझसे मिलना चाहता है मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। और फरमाया जो मेरी मुलाकात को न पसंद करता है, फरमाया फिर उससे मैं भी मुलाकात को न पसंद करता। हाँ जी, वो बेनियाज कितनी जो है करम नवाजी फरमाता है। फरमाया तू जरा थोड़ा रुजू तो कर, तू मेरी तरफ आ तो सही, तू कदम तो उठा, तू इधर तवज्जो तो कर, मेरी तरफ जरा कदम तो बढ़ा। तू कदम बढ़ा, मेरी रहमत जो है तुझसे ज्यादा आकर अपनी लपेट में लेगी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद नहीं करता, फिर वो दुनिया से मुलाकात करता है। दुनिया पसंद है ना, दुनिया को, दुनिया की मोहब्बतों को तरजीह देता है। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह फरमाता है जो मुझसे मिलना चाहता है मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। भला क्या हुजूर का फरमान ये सच्चा, जिसके अंदर मोहब्बत इलाही की तड़प होगी,
जो ख्वाहिश रखेगा, रब तो खुद फरमा रहा है जो मुझे मिलना चाहता है मैं उसको मिलना चाहता हूं। समझे? आगे हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बात जो है जरा गौर करना, हम सारे जो है पीरों के मानने वाले हैं सारे, और पीरों के पास जाते हैं, लेकिन इस तरह कभी गए हैं? मैं भी अर्ज करने लगा, सूफिया ने लिखा है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहता है तो सिर्फ अल्लाह की खातिर अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, जियारत करनी चाहिए, अल्लाह की खातिर, कोई और गर्ज ना हो, कोई और मकसद ना हो, बस जाए और सिर्फ अल्लाह के लिए जियारत करके, मजालसत करके, उनकी सोहबत में बैठकर वापस आ जाए। गर्ज सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अगर अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा तो इससे भी मोहब्बत इलाही है, इससे भी मोहब्बत इलाही। लेकिन हमारी मुलाकातें इस जो है गर्ज से खाली, हमारी मुलाकातें अल्लाह वालों से भी दुनिया के लिए होती हैं। हमारी मुलाकात उस वक्त होती है जब कोई गर्ज आ जाए। हमारी मुलाकातें गर्ज के ताबे हैं। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो फिर खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए जाकर बैठा, अल्लाह वालों के पास बैठा। और आखिरी बात, बातें और भी हैं करने वाली, आखिरी बात के फरमाया मुराकबा किया, खलवत नशीं होकर अल्लाह की बारगाह में मुराकबा करके ऐसा बैठा करे, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवाज़िशात, उन पर तवज्जो करके मुराकबे में बैठा करे कि देखें मालिक ने कैसी सूरत अता फरमाई है, क्या मकाम अता फरमाया है, क्या औलाद अता फरमाई है, किस तरह घर अता फरमाया है। ये नेमत ना देता तो वो तो मालिक है, इंसान ही ना बनाता, परिंदों में कर देता, हैवानों में कर देता, दरिंदों में कर देता, चरिंदों में कर देता। वो मालिक है, वो कर सकता था, उसने इंसान बनाया, फिर खूबसूरत सूरत अता फरमाई, फिर मकाम व मर्तबा अता फरमाया, मालो दौलत अता फरमाया, घर बार अता फरमाया, औलाद दी। ये सारी नेमतें हम हर वक्त जब जिक्र करते हैं, हम जो मिला होता है हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं होती, जो नहीं मिला होता उस तरफ तवज्जो। अगर ऐसा होगा तो मोहब्बत इलाही नसीब नहीं होगी। मोहब्बत उन्हें नसीब होती है जो मिले पर काने हो जाते हैं और शाकिर बन जाते हैं। अल्लाह ने जो अता फरमाया है उस पर कनात करके उसके एहसानात के बदले में उसका शुक्र अदा करना। फिर जब बंदा शाकिर होता है, रब फरमाता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओ मैं इसमें इजाफा। तो दोस्तान मोहतरम, आज आपके सामने जो है वो मोहब्बत इलाही के हवाले से चंद गुज़ारिशात मैंने अपनी बसात पर, और कोशिश यही की है कि हुजूर किबला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की आपकी तालीमात की रोशनी में, जो तालीमात हमारे सामने हैं उनकी रोशनी में आपके सामने अल्लाह पाक हमें ये मोहब्बत इलाही की दौलत अता फरमाए। और ये दौलत सारी दौलतों की असल है, ये दौलत सारी दौलतों की बुनियाद है। एक हदीस मुबारका मुझे याद आ गई है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। क्या मंजर है क़यामत? सूरज सवा नेज़े पर थर थर कांप रहे हैं, बड़े बड़े मकाम और मर्तबे वाले उसके जलाल के सामने कांप रहे हैं। बड़े बड़े साहिब मर्तबा अंबिया के पास जब कोई हाजिर होता है तो फरमाते हैं इला गैरी गैरी गैरी। ये मंजर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन ऐलान फरमाएगा ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, वो मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, वो मुहिब कहाँ हैं? ऐनल मुतहाब्बून, हाय हाय हाय। हर एक को नफ्स नफ्सा नफ्सी है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी है। जान की पड़ी हुई है, लाले पड़े हुए हैं जान के। और उस दिन से सख्त दिन और कोई नहीं है। लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए रब फरमाएगा ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली,
جو میری خاطر محبت کرتے تھے، میری عزت و جلال کی خاطر، وہ کہاں ہیں؟ وہ اٹھے کھڑے ہو، وہ کہاں ہیں؟ وہ محبت کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ خوش ہو جاؤ یار، اللہ کرے ہمیں اللہ پاک کی محبت عطا فرما، اس محبت کا ذرا مل جائے، اس محبت کا ذرا نصیب ہو جائے تو پھر کیا عین المتحابون، اعلان ہوگا کہاں ہیں محبت کرنے والے، میری عزت و جلال کی خاطر محبت کرنے والے۔ مولا کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس دن، جس دن میرے عرش الہی کے سائے، حدیث مبارکہ میں عرش الہی نہیں ہے، ترجمہ کرتا ہوں، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ پاک ان کو اپنے سائے میں جگاتا ہے۔ یہ محبت کا اجر ہے، محبت کا ثمر ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبت بھی عطا فرمائے، متحابون میں شامل بھی فرمائے، اور پھر متحابون کو جو ثمر عطا فرمایا ہمیں وہ خیرات بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت جس دوست دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کے ایمان میں، عمل میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائے اور دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میں نے پہلے عرض